مجھے دن میں بے شمار تحاشا میسیجز آتے ہیں، مفتی صاحب میں سنیت چھوڑ رہا ہوں. میں اس سے پوچھتا ہوں کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی مفتی صاحب اس لیے کہ تو سب فراڈ ہمارے سامنے کہا گیا کہ مولوی صاحبان نے، یعنی ہاتھ باندھنے کی کوئی روایات کہیں پر نہیں ہے صحیح احادیث کے اندر ہاتھ باندھنے کی، لیکن عمل اس کے اوپر ہے، ہاتھ چھوڑنے کی روایات ہے. معزز سامعین، آپ نے اس رافضی مفتی کا کلپ سنا جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. یہ رافضی مفتی کہہ رہا تھا کہ مجھے روزانہ بے شمار میسیجز آتے ہیں، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم سنیت چھوڑ رہے ہیں. جب میں ان سے وجہ پوچھتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ مولویوں نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے. ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی احادیث تو موجود ہیں، مگر ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی کوئی ایک صحیح حدیث بھی موجود نہیں ہے. تو سامعین، آج کی اس نشست میں اس رافضی مفتی کے دجل اور جھوٹ کا پردہ چاک کرتے ہیں، اور الحمدللہ آج میں ثابت کرتا ہوں کہ کتب احادیث میں ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی احادیث موجود ہیں، اور الحمدللہ وہ احادیث متواتر ہیں. میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب نظم المتناصر من الحدیث المتواتر ہے. اس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث محمد بن جعفر القطانی رحمت اللہ علیہ ہیں. اور سامعین، یہ کتاب بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر 86 ہے. محمد بن جعفر القطانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی احادیث متواتر ہیں. لکھتے ہیں وضع الیدین احداہما علی الاخری فی الصلاۃ، نماز میں ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھنا، یعنی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنا. اور پھر نیچے سامعین محدث محمد بن جعفر القطانی رحمت اللہ علیہ نے 20 صحابہ کرام اور 5 تابعین کے نام لکھے ہیں جن سے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی احادیث مروی ہیں. ان کے اسماء میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. سہل بن سعد الساعدی، وائل بن حجر الحضرمی، عبداللہ ابن مسعود، حلب الطائی، علی بن ابی طالب، ابن زبیر، ابی ہریرہ، جابر بن عبداللہ، حارث بن غطیف الصومالی، عمر بن حریث المخزومی، یعلا بن مرہ الثقفی، عبداللہ ابن عمر، ابی دردہ، حذیفہ، ام المؤمنین عائشہ، ابن عباس، انس، شداد بن شرحبیل، معاذ بن جبل، سفیان الثوری، ابی امیہ عبد الکریم بن ابی المخارق، طاؤوس، حسن البصری، عطا بن ابی رباح، ابراہیم النخعی. سامعین، یہ ہیں 20 صحابہ اکرام اور 5 تابعین کے نام جن سے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی احادیث مروی ہیں. ان کے علاوہ سامعین الحمدللہ ہم نے 3 مزید روایات دیگر کتب احادیث میں سے تلاش کی ہیں، اور سامعین یہ کل 28 روایات ہیں نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنے کی. اب سامعین میرا اس رافضی مفتی سے مطالبہ ہے، اگر اس میں ذرہ برابر بھی علمی غیرت ہے تو یہ کتب اہل سنت میں سے کوئی ایک صحیح صریح متصل مرفوع حدیث ہاتھ کھول کر نماز پڑھنے کی ثابت کرے. تو سامعین اب الحمدللہ میں آپ کے سامنے یہ روایات کتب احادیث میں سے اور محدثین کی تحقیم کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں. تو سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب صحیح البخاری ہے جس کے لکھنے والے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں، اور سامعین یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحابی رسول حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ لکھی ہے نماز ہاتھ باندھ کر پڑھنے کی، اور سامعین بخاری شریف میں اس حدیث مبارکہ کا نمبر 740 ہے. اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب الاعماء الی زوائد الامالی والاجزاء ہے، الاعماء الی زوائد الامالی والاجزاء. اور سامعین یہ کتاب سعودی عرب کی مطبوعہ ہے اور اس کی جلد نمبر 2 ہے. سامعین اس میں کتاب الافراد للدارقطنی ہے، اور اس کتاب میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے کی حدیث موجود ہے، اور سامعین اس کتاب میں حدیث مبارکہ کا نمبر 1511 ہے. اس سے آگے سامعین یہ میرے ہاتھ میں
अल अहादीसुल मुख्तारा है। इस किताब के लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस ज़ियाउद्दीन अल मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन, इसमें हदीस मुबारक का नंबर 772 है। इन्होंने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज हाथ बांध कर पढ़ने की हदीस मुबारक को लिखा है। और सामईन, ये हदीस मुबारक मुहद्दिस मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह की शरायत के मुताबिक सही है। इससे आगे सामईन, ये मेरे हाथ में किताब अल बद्रुल मुनीर है। और सामईन, इस किताब के लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम इब्ने मुलक्किन रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन, ये किताब भी सऊदी अरब की मतबूआ है। और सामईन, इसमें हजरत इब्ने जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक मौजूद है। और सामईन, इसकी जिल्द नंबर 3 है और इसका सफ़ा नंबर 512 है। लिखने के बाद इमाम इब्ने मुलक्किन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी इस्नाद जय्यद है। इससे आगे सामईन, ये मेरे हाथ में किताब किताबुद्दुअफ़ा है, जिसके लिखने वाले इमाम जरा तादील इमाम उकैली रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन, इस किताब में हदीस मुबारक का नंबर 3960 है। इन्होंने सहाबी रसूल हजरत याला बिन मुर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु की हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक को लिखा है। और लिखने के बाद इमाम उकैली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी सनद सालेह है। इससे आगे सामईन, ये मेरे हाथ में किताब अत-तारीखुल कबीर है, जिसके लिखने वाले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन, इसकी जिल्द नंबर 4 है और इसका सफ़ा नंबर 191 है। और सामईन, ये किताब बैरूत लबनान की मतबूआ है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबी रसूल हजरत शद्दाद बिन शुरहबील रदियल्लाहु ताला अन्हु की हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक लिखी है। और लिखने के बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर कोई जरा नहीं की। ये हदीस मुबारक इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक सही है। इससे आगे सामईन, ये मेरे हाथ में किताब खुलासा अल बद्रुल मुनीर है। और सामईन, इसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम इब्ने मुलक्किन रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन, ये किताब सऊदी अरब की मतबूआ है। इसकी जिल्द नंबर अव्वल है और सामईन, इसका सफ़ा नंबर 114 है। इमाम इब्ने मुलक्किन रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक लिखी है। लिखने के बाद इमाम इब्ने मुलक्किन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हदीस मेरे नजदीक भी सही है और इमाम इब्ने हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक भी सही है। इससे आगे सामईन, ये मेरे हाथ में किताब सुनन अद-दारक़ुतनी है, जिसके लिखने वाले इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन, ये किताब बैरूत लबनान की मतबूआ है। और सामईन, इस किताब पर शेख शुएब अल अरनाउत की तहकीक है। सामईन, इसकी जिल्द नंबर 2 है और इसका सफ़ा नंबर 31 है। इमाम दारक़ुतनी रहमतुल्लाह अलैह ने उम्मुल मोमिनीन हजरत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हा की हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक लिखी है। और सामईन, इस हदीस मुबारक के मुतालिक शेख शुएब अल अरनाउत कहते हैं कि ये हदीस मुबारक सही है। इससे आगे सामईन, ये मेरे हाथ में किताब अल खिलाफियात है, जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन, ये किताब मिस्र की मतबूआ है। और सामईन, इसकी जिल्द नंबर 2 है और इसमें हदीस मुबारक का नंबर 1484 है। इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबी रसूल हजरत अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक लिखी है। इससे आगे सामईन, ये मेरे हाथ में किताब इत्हाफुल खियरतिल महरा है, जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह हैं। सामईन, ये किताब बैरूत लबनान की मतबूआ है। इसकी जिल्द नंबर 2 है और इसका सफ़ा नंबर 203 है। इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक लिखी है। और लिखने के बाद इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर कोई जरा नहीं की। इससे आगे ये मेरे हाथ में किताब ज़वाइदुल अहादीसिल मुख्तारा है। इसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस ज़ियाउद्दीन अल मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन, ये किताब सऊदी अरब की मतबूआ है और इस किताब में हदीस मुबारक का नंबर 416 है। इमाम ज़ियाउद्दीन अल मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्ला बिन जाबिर अल बयादी की हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक लिखी है। और सामईन, ये हदीस मुबारक इमाम मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह की शरायत के मुताबिक सही है। और इस किताब के मुहक्किक इस हदीस मुबारक के मुतालिक लिखते हैं कि इस हदीस की इस्नाद हसन है।
इससे आगे सामईन ये मेरे हाथ में किताब फैजुल कदीर है, जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम अब्दुर रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन ये बैरूत लबनान की मतबूआ है। और सामईन इस किताब की जिल्द नंबर 5 है और इस किताब में हदीस मुबारक का नंबर 7083 है। इन्होंने हजरत अमर बिन हुरैस अल मखजूमी की हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक लिखी है। और सामईन यही हदीस मुबारक अस-सिराजुल मुनीर में मुहद्दिस अजीजी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखी है। अस-सिराजुल मुनीर की जिल्द नंबर 3 है और सामईन इसका सफ़ा नंबर 175 है। इससे आगे सामईन ये मेरे हाथ में किताब अस-सुननुल कबीर है, जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन ये किताब शाम की मतबूआ है और इसकी जिल्द नंबर 2 है, इसका सफ़ा नंबर 29 है। हजरत इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक लिखी है। इससे आगे सामईन ये मेरे हाथ में किताब अल औसत है, जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम इब्ने मुंजिर रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन ये किताब बैरूत लबनान की मतबूआ है, इसकी जिल्द नंबर 2 है और सामईन इसका सफ़ा नंबर 26 है। इमाम इब्ने मुंजिर रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु की हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक लिखी है। और लिखने के बाद इमाम इब्ने मुंजिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारक की सनद कवी है। इससे आगे ये मेरे हाथ में मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा है, जिसके लिखने वाले इमाम इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन इस किताब की जिल्द नंबर अव्वल है और इसका सफ़ा नंबर 715 है। इमाम इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह ने अबू उस्मान इब्राहिम अन-नखी हसन अल बसरी की हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की अहादीस मुबारक लिखी हैं। इससे आगे सामईन ये मेरे हाथ में किताब अत-तारीफ वल इखबार है, इसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस कासिम बिन कतलूबुगा रहमतुल्लाह अलैह हैं। सामईन ये किताब मिस्र की मतबूआ है, इसकी जिल्द नंबर 1 है और इसका सफ़ा नंबर 157 है। मुहद्दिस कासिम बिन कतलूबुगा रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबी रसूल हजरत वाइल इब्ने हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस मुबारक लिखी है। हजरत वाइल इब्ने हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में हाथ नाफ के नीचे बांधा करते थे। और सामईन इस हदीस मुबारक के मुतालिक मुहद्दिस कासिम बिन कतलूबुगा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इसकी इसनाद जय्यद है। तो सामईन आपने इस राफ़ज़ी मुफ्ती का क्लिप सुना, ये कह रहा था कि हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की कोई एक सही हदीस भी नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की अहादीस मुबारक कुतुब अहादीस में से पेश कर रहा हूँ और मुहद्दिसीन की तहकीम के साथ पेश कर रहा हूँ कि मुहद्दिसीन फरमा रहे हैं कि ये अहादीस मुबारक सही हैं। इससे आगे सामईन ये मेरे हाथ में किताब बदाइउल फवाइद है, जिसके लिखने वाले इब्ने कय्यिम हैं। सामईन ये किताब बैरूत लबनान की मतबूआ है और इसका सफ़ा नंबर 402 है। इब्ने कय्यिम ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज में हाथ नाफ के नीचे बांधने की हदीस मुबारक लिखी है। और लिखने के बाद इब्ने कय्यिम लिखते हैं कि ये हदीस मुबारक सही है। इससे आगे सामईन ये मेरे हाथ में किताब जामिउ तिर्मिज़ी है, जिसके लिखने वाले इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन तिर्मिज़ी शरीफ में हदीस मुबारक का नंबर 252 है। इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने सैयदना हुल्ब अत्ताई की हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक लिखी है। और लिखने के बाद इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हदीस मुबारक हसन है। और सामईन इसी हदीस मुबारक को शरह सुन्ना में इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखा है। सामईन शरह सुन्ना में हदीस मुबारक का नंबर 570 है। इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हदीस मुबारक हसन है। इससे आगे सामईन ये मेरे हाथ में किताब मजमउ ज़वाइद है, जिसके लिखने वाले जलीलुल कदर मुहद्दिस इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह हैं। और सामईन इस किताब की जिल्द नंबर 2 है। इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक लिखी है। सामईन इस हदीस मुबारक का नंबर 2609 है। लिखने के बाद इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस मुबारक के तमाम रावी सही बुखारी के रावी हैं। इससे आगे सामईन इसी किताब में
इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह तआला अन्हु की हाथ बांधकर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक लिखी है, और सामीन इस हदीस का नंबर 2607 है। इस हदीस मुबारक के मुतालिक भी इमाम हैसमी फरमाते हैं रिजालुस सही के इसके तमाम रावी सही बुखारी के रावी हैं। और सामीन फिर इसी किताब में इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह तआला अन्हु की भी हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक लिखी है, और सामीन इस हदीस मुबारक का नंबर 2611 है। और इस हदीस मुबारक के मुतालिक इमाम हैसमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हदीस मुबारक सही है। इससे आगे सामीन ये मेरे हाथ में किताब सुनन अबी दाऊद है, जिसके लिखने वाले इमाम अबी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह हैं, और सामीन ये किताब सऊदी अरब की मतबूआ है। और सामीन इस किताब में इमाम अबी दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु की हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की हदीस मुबारक लिखी है, और सामीन इस किताब में हदीस मुबारक का नंबर 755 है। और सामीन फिर इसी हदीस मुबारक के मुतालिक अल्लामा अलबानी कहते हैं कि ये हदीस मुबारक हसन है। तो सामीन आज की इस नशिस्त में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपके सामने हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की कुल 28 रिवायात मुहद्दिसीन की तहकीम के साथ पेश की। अब अगर इस राज़ी मुफ्ती में जर्रा बराबर भी इल्मी गैरत है तो ये कोई एक हदीस कुतुब अहले सुन्नत में से सही सरी मुत्तसिल मरफू हाथ खोल कर नमाज पढ़ने की पेश करे। सामीन इंशाअल्लाह इस जैसे राफ़जी मौलवियों का इल्मी और तहकीकी ताक़ुब जारी रहेगा। वमा अलैया इल्लल बला।